Hello everyone, I hope you guys are fine. Myself Akshay Thakkar from SST Academy. Today in this session we will be covering the first chapter of your civics, that is power sharing. Now, what is power sharing? When power is divided between different organs of the government, that is legislative, executive and judiciary, or between different parties of the country, it is considered as. Basically in this chapter we'll be learning the information regarding two countries which are Belgium and Sri Lanka. So if we talk about Belgium, Belgium is a federal state in the Western Europe. यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में बेल्जियम लोकेटेड है एंड इट इज अ फेडरल स्टेट. आई होप यू नो व्हाट इज फेडरलिज्म, हमने क्लास 9 में पढ़ा था. नेक्स्ट, पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज स्मॉलर देन हरियाणा. बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है और उसका जो एरिया है, एक इंडिया का स्टेट है हरियाणा, उससे काफी ज्यादा कम है. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंडियन स्टेट हरियाणा है वो बेल्जियम कंट्री से काफी ज्यादा बड़ा है. थर्ड, इट हैज बॉर्डर्स विद नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग. सो बेल्जियम के बॉर्डर्स पे कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है? एक तो नेदरलैंड्स, सेकेंड फ्रांस, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग. सो ये बात हो गई बेल्जियम के से ज्योग्राफिक कंपोजिशन. अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उसका एथनिक कंपोजिशन. एथनिक कंपोजिशन का मतलब कि वहां पे कैसे लोग रहते हैं, लोग वहां पे कौन सी भाषा बोलते हैं. सो बेसिकली बेल्जियम में 3 kinds of people live in Belgium. The first are Dutch speaking people, the second are French speaking people, and the next are German speaking people. So यहाँ पे Dutch speaking people 59% उनका रेशियो है. पूरे कंट्री में 59% लोग डच में बात करते हैं और जो फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम में लोकेटेड है. नेक्स्ट, फ्रेंच स्पीकिंग. There are 40% people in Belgium who speak French and they live in the Wallonia region of Belgium. And rest 1% people speak German. Okay, so basically this is the ethnic composition of Belgium. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि भले ही वहां पे ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी डच स्पीकिंग पीपल की है, दैट इज 59%, लेकिन उसी कंट्री का जो कैपिटल है, दैट इज कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल सिटी है. वहां पे उसका रेशियो एकदम ही उल्टा है. लाइक सी, आपको जैसे पता है कि पूरे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग डच स्पीकिंग पीपल है, लेकिन उसी कंट्री के कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रेंच स्पीकिंग है, which is 80% of the total population of Brussels, and the rest 20% speak Dutch in Brussels. So previously we have seen the ethnic composition of Belgium. We have also seen the demographic composition of Belgium. Now, due to the difference in the demographic composition of Belgium, basically there were few tensions. जो डिफरेंसेस थे उनके एथनिक कंपोजिशन में, उसके वजह से बहुत सारे टेंशंस वहां पे चल रहे थे. सो नाउ टेंशंस बिटवीन द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज. Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. हमने ये पढ़ रखा है. Second, between 1970s and 1993, the constitution of Belgium was amended 4 times. See, क्योंकि उन दोनों के बीच में, दोनों लैंग्वेजेस के बीच में, दोनों टाइप ऑफ पीपल के बीच में वहां पे प्रॉब्लम्स चल रहे थे. वो प्रॉब्लम्स की वजह से काफी सारे टेंशंस उस कंट्री में हो रहे थे, चल रहे थे. ओके, नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स? What are the key points to constitution amendments? The number of Dutch speaking and French speaking ministers shall be equal in the central government. See, उन लोगों ने ये जो 20 to 23 years के बीच में जो उन्होंने यहाँ पे amendments किए, उसमें से सबसे पहला जो amendment था, that is the number of Dutch speaking and French speaking ministers shall be equal in the central government. कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उसमें से 50% मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकिंग होने चाहिए
and 50% speaker, 50% minister Dutch speaking होने चाहिए. Second, state government are not subordinate to central government. जितने भी state government से उनको एक independent power दे रखा था. They are not required to consult anything with the central government except the few issues. Third, Brussels has a central government. Both the Dutch speaking and French speaking have equal representations. See, जो उसका कैपिटल था ब्रुसेल्स, वहां पे एक अलग ही गवर्नमेंट थी जहां पे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल रेशियो दिया गया था और उसी के बेस पे वो गवर्नमेंट वहां पे रन हो रही थी. एंड द लास्ट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. और उसके अलावा और एक गवर्नमेंट वहां पे बनाई गई थी जहां पे कोई भी एथनिक कंपोजिशन के उस कंट्री में जितने भी लोग हैं वो लोग उस कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं. और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? दे हैव टू लुक द इश्यूज रिगार्डिंग द पावर्स रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. सो ये सब चीजें उनको वहां पे देखनी पड़ती थी. ओके, सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. इन द पार्ट 1 वी हैव सीन अबाउट बेल्जियम. We have seen the ethnic and the demographic composition of Belgium. Now in this part 2, we'll be looking the ethnic and the demographic composition of Sri Lanka. And in fact इस वीडियो में हम काफी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखने वाले हैं कि एक टाइम में श्रीलंका में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे एंड उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वहां पे एक सिविल वॉर भी हुआ था. So now first of all, let's talk about the demographic and ethnic composition of Sri Lanka. So if we talk about Sri Lanka is an island nation. वो एक island पे बसा हुआ है. Secondly, उसका population is near about 2 crores and of that 2 crore people, 74% of the people are Sinhalese who speak Sinhalese and they are of the Buddhist religion. 18% people who speak Tamil and are basically Hindu or Muslims and 7% are Christians. So this was the ethnic and the demographic composition. Now, basically this 18% Tamils are subdivided in two parts. That is Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. Of this 18% Tamils, 13% Tamils are Sri Lankan Tamils. They constitute 13%. And they are either Hindus or Muslims. And if we talk about Indian Tamils are all those Tamils who shifted from India few years back or whose forefathers shifted from India for a few years back are considered as Indian Tamils and they constitute 5% of the total population of Tamils. So ये तो बात हो गई कि भाई के सब ग्रुप्स ऑफ तमिल्स. अभी इसके अलावा जो श्रीलंकन तमिल्स ने काफी ज्यादा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे. अभी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हुए थे? They demanded the Tamil as an official language and the regional autonomy. So basically यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो लोग चाहते थे कि तमिल वहां का एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, लेकिन वहां के गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया था, उनको मना कर दिया था. सेकेंडली, वहां की एक रीजनल पार्टी है जिसका नाम है LTTE, which stands for Liberation Tigers of Tamil Eelam. Now they demanded an independent Tamil state which led to conflict which turned to civil war. वो लोग चाहते थे कि तमिल लोगों का एक अलग से कंट्री बन जाए, अलग से एक स्टेट बन जाए, लेकिन वो भी बाद में डिनाई कर दिया गया था जिसकी वजह से पूरे कंट्री में सिविल वॉर हो रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट सिविल वॉर काफी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी. दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड इवन काफी सारे फैमिलीज को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा. ओके, सो टिल नाउ वी हैव सीन द एथनिक एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, द एथनिक एंड द डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, and we have also seen the various we can say the conflicts that have occurred in those particular countries. Now in the last part of the video हम लोग देखेंगे कि पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज पावर शेयर करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं, तो वो कौन से फॉर्म में पावर शेयरिंग करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट फॉर्म इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेकंड इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, द थर्ड इज community government, fourth is
coalition government, and the fifth is different interest groups. Now please understand this very carefully. The first is what is mean by the term horizontal distribution of power. Like see, you very well know that in the country like India, we have three organs of the government, which are legislative, executive and judiciary. So you very well know that these are the independent organs of the government. Like legislative body has a right to make the laws, executive body has a right to implement those laws, and in case if anyone we can say if anyone bars the laws, the judiciary has the right to give the punishment. So basically independently powers are very well divided between different organs of the government. So when the organs of the when powers of the government are divided between legislative, executive and judiciary, it is called as a horizontal distribution of power. Next, which is called as a vertical distribution of power. Like see, you very well know that if we see like different forms of government, it is a central government, state government and the local government. Like see, you have studied in class 9 that we have different list of rules. The first is union list, second is concurrent list, third is state list. अब यूनियन लिस्ट में क्या होता है? यूनियन लिस्ट में मतलब ऐसे सारे पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं. स्टेट लिस्ट क्या होती है? ऐसे सारे पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं. एंड कॉन्करेंट मतलब ऐसे पावर्स जो दोनों एक साथ करते हैं. लाइक लेट मी गिव द एग्जांपल. अगर हम लोग बात करें जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपने जब रेस्टोरेंट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सो सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, whereas एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अभी इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके 1000 रुपए का खाना खाते हो तो उसके ऊपर आपको 180 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है. दैट इज 18% ऑफ ₹1000. अभी उस 180 में 90 रुपीज जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास एंड 90 रुपीज जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सो द पॉइंट इज, वो सब कहां पे लिखा हुआ है? वो सब कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है. वो सब कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब रूल्स लिखे हुए हैं. सो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही इलाबरेटली लोगों को बता दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से काम है एंड स्टेट गवर्नमेंट के कौन से काम है. सो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. नेक्स्ट, थर्ड, कम्युनिटी गवर्नमेंट. अभी जैसे हमने पार्ट 1 ऑफ वीडियो में देखा था कि कुछ कंट्रीज में रिलीजन्स को या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को पावर्स दे रखे हैं. लाइक बेल्जियम के एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि बिकॉज वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, किसके बीच में? डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है. सो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया कि मिनिस्टर्स दोनों के इक्वल नंबर में रहेंगे. सो वैसे ही द फॉर्म्स दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, द पावर ऑफ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट can be divided on the basis of religious and linguistic groups. The fourth, that is coalition government. Like see, ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा. What is called as a coalition government? Like see, आपको पता है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर उनको अपनी पार्टी वहां पे फॉर्म करनी है तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 50% सीट्स उनको मिलना चाहिए. लेकिन अगर 50% सीट्स उनको नहीं मिलता है तो in that case they can form a government with any other party, we can say. Clear? So जब दो से ज्यादा पार्टीज एक साथ किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. लाइक सी, द एग्जांपल इज रिसेंटली अभी महाराष्ट्र में 3 गवर्नमेंट्स हैं. इट इज एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस. सो वो तीनों मिला के महाराष्ट्र की सरकार चला रही है. That is called as a coalition government. And the last is different interest groups. Like ये भी हमने एग्जांपल देखा था बेल्जियम का. बेल्जियम में उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बनाई हुई थी. उसका रोल क्या था कि वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो वहां के कल्चरल, वहां के एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उन सबको सॉल्व करता है. सो अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के कल्चरल, एजुकेशनल या लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स के इश्यूज
फाइंड करने के लिए बनाए हो, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।